Cinema is an art form that can transcend all boundaries of human emotion, a riveting amalgamation of images and sounds that empowers imagination and serves as a grand avenue of creative representation. The audiovisual prowess of this art form has been utilized by artists, thinkers, and visionaries since time immemorial. If we go down the memory lane, we will find that cinema has been a true mirror of the society. Yes, it was also exploited by a few historical figures to solidify their dictatorial regimes, but this medium was mostly a source of conveying the reality of the world that we live in. In fact, there was an entire wave of parallel cinema in our country bringing forward stories that depicted various harsh realities of our society. Of course, we also have the fictional nature of storytelling, where cinema becomes a gateway of escaping our everyday monotony. But there are times when cinema can become a testimony of truth, substantial evidence of a major event, an investigation of reality. That's the reason why we have a plethora of documentaries jotting down the occurrence of significant events that were either noticed or unnoticed by the common folk. One such event that shook the very foundation of humanity was the genocide of the Kashmiri Pandits, and a recent cinematic endeavor that took charge of becoming the harbinger of truth about the genocide is the Kashmir Files, written and directed by Vivek Agnihotri. I did watch the film, and it won't be wrong to admit that I was left speechless. What I experienced was nothing less than an emotional storm. There is no way that anyone can review or rate this film. But the reason why I won't talk about this film is because I don't think I am capable enough of doing justice with my thoughts. Hence, I reached out to my friend who is a Kashmiri Pandit and asked her if she can anchor this video by expressing her raw, unfiltered opinions on the film. She was kind enough to not just say yes for herself, but also for bringing two more people from the community to talk about this film. Please note that this video was conceptualized and executed only with their due consent and approval. All their opinions, comments, and thoughts have not been edited or doctored in any way. Last but not the least, this video will remain demonetized forever. नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुष्पांजलि फोतेदार है और मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। आज मैं आप सबके साथ जो मूवी है दी कश्मीर फाइल्स उससे रिलेटेड कुछ बातें रखना चाहूँगी, कुछ अपना नज़रिया शेयर करना चाहती हूँ। तो सब कुछ शुरू करने से पहले मैं ये चैनल दी लॉन्ग लिव सिनेमा को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ, या फिल्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो मेरे लोगों ने सफ़र किया, क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, वो सब एक पॉइंट मैं आपके सामने, एक बात मैं आपके सामने रख सकूँ। तो उसके लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करूँगी। सबसे पहले, जब भी कोई इंसान कश्मीर की हिस्ट्री जानना चाहता है या स्टडी करना चाहता है, तो मोस्टली हम सुनते हैं जो न्यूज़ में हमें बताया जाता है, या हम जो पर्सपेक्टिव जो सुनते हुए आ रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी, यही मुद्दों पे हम ज़्यादातर एक कश्मीर के बारे में जानते हैं। हाँ, ये भी है कि जैसे कभी किसी को घूमने जाना हो, तो ब्यूटी को बताता है कि हाँ, कश्मीर घूमने की जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो सिर्फ़ इतने तक ही सीमित रह गया है कश्मीर को का पर्सपेक्टिव। तो जब भी कश्मीर के बारे में जानना है, ये मेरा मानना है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये मेरा पर्सपेक्टिव निकला है कि एक इंसान को 3 एराज़ में हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कश्मीर की। दैट इज़ प्री इंसर्जेंसी एंड जेनोसाइड एरा, ड्यूरिंग इंसर्जेंसी एंड जेनोसाइड एरा, एंड पोस्ट इंसर्जेंसी एंड जेनोसाइड एरा, जो फ़िल्म में भी दिखाया गया है। फ़िल्म में बस एक चीज़ है कि प्री इंसर्जेंसी एरा जो है वो नहीं है, जो डील कर रही है फ़िल्म वो ड्यूरिंग और पोस्ट इंसर्जेंसी और जेनोसाइड एरा का डील कर रही है। अब बात आती है जो मेरा पर्सपेक्टिव है जिस तरह से। तो एक बात है कि ये जो फ़िल्म है, ये किसी भी एंगल से कोई
जो वर्ड्स हैं, जैसे लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा फैला रही है, हेट फैला रही है, वायलेंस फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मूवी प्योर प्योर इंटेंशन से सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई बता रही है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जब हम आप ये मूवी देखते हैं, आपको ये नज़र आएगा कि अ, दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो उनको गलत पोर्ट्रे करा जा रहा है या उनको इस तरह से गलत लाइट में दिखाया जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा हुआ है और हमारे साथ ऐसा हुआ था। आई वॉज नॉट बॉर्न व्हेन इट वॉज हैपनिंग। ये सब कुछ जब हुआ तो मैं उस टाइम पे बॉर्न नहीं थी। मेरे पेरेंट्स जो मुझे बताते हैं, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो बताया, मैं उस पर्सपेक्टिव से बहुत वाकिफ़ रखती हूँ। और हाँ, ये एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें जो बताई गई हैं फ़िल्म में भी, वो सब की सब सच है। मैं आज भी मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि मेरे फादर जो थे, ही वाज़ वर्किंग इन राजस्थान, भीलवाड़ा एट दैट टाइम। सो मुझे याद है उनकी जो फैमिली थी, जब वो कश्मीर से निकाले गए, दे शिफ्टेड टू अ प्लेस कॉल्ड उधमपुर। तो उधमपुर में मुझे याद है वो कैसे घर में रहते थे कि एक कमरा था जिसको बहुत ही, उसका आधे से भी आधा हिस्सा डिवाइड कर दिया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे जो सबसे मेरे जो परदादा जी हैं, जिन्हें हम टाठा जी कहते थे, ही पास्ड अवे, बट अ, वो उनका कमरा था। बाकी आई वुड लाइक टू से लाइक 11 टू 12 पीपल वर देयर इन माय फैमिली, जो उस सिर्फ उस कमरे में रहते थे। आफ्टरवर्ड्स वो मेरे मतलब मेरे दादाजी, मेरी फैमिली और मेरे छोटे दादाजी की फैमिली, तो उनको मिला के 12 फैमिली मेंबर्स थे जो सिर्फ उस एक कमरे में रहते थे और एक छोटा सा किचन था। फिर जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, कुछ साल बाद मेरे छोटे दादाजी की जो फैमिली थी, दे डिसाइडेड टू गेट सेपरेट। तो उन्होंने दूसरा घर ले लिया और जम्मू में ही लिया। उनका भी मुझे घर याद है, बहुत ही छोटा, मतलब एक कमरे में ही साइड में किचन, नाला छोटा-सा था, वहीं बर्तन धोते थे। साइड में ही एक उन्होंने अपना सोने का इंतज़ाम रखा था और उसी कमरे से एक दरवाज़ा निकलता था जो बाहर मैदान की तरफ जाता था, और वहाँ पे उन्होंने छोटा-सा एक ईंटों से, जैसे वो वेयर हाउसेस बनाते हैं ना जब घर बनते हैं, तो वो टॉयलेट था उनका, और दैट वाज़ नॉट आल्सो दैट मच, मतलब इतना अच्छा नहीं था वो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे पैटर्नल साइड से बताऊँगी। मेरे मैटर्नल साइड की अगर मैं बात बताऊँ, दे इट वाज़ नॉट समथिंग व्हिच, मतलब ये बहुत ही हॉरिबल उनकी सिचुएशन थी। माय सम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वर देयर नेम्स वर इन हिट लिस्ट, और रातों रात मेरे सबसे बड़े भैया जो हैं, बहुत ही छोटे थे वो, रातों रात उन्हें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ा। मुझे आज भी याद है, यहाँ मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूँगी, प्री इंसर्जेंसी के टाइम के। माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि जो मेरे नाना जी थे, उन्होंने घर बनाया था ये उम्मीद से कि, मतलब मतलब उस घर में ना उन्होंने 4 अलग-अलग दरवाज़े बनाए थे, ये सोच के कि जब भी मेरी बेटियों की शादी होगी, तो मैं उन चारों दीवारों में, मतलब दरवाज़ों से ना मेरे दामाद और मेरी बेटियाँ आएँगी। सबसे बड़ी बेटी एक दरवाज़े से आ रही है, दूसरे से, तो ही हैड, बट वो सपना उधर ही रह के रह गया। वो घर जो उन्होंने बनाया था, वो कुछ भी नहीं वहाँ पे रहा, सिर्फ़ एक हेट्रेड की वज़ह से। सो दिस वाज़ ऑल व्हिच दे हैड सफर्ड, और हम ये सारी स्टोरीज़ जो है हम ये सुनते हुए आ रहे हैं। हमारी जो परवरिश एक बच्चे की होती है, वैल्यूज़ है, कल्चर्स है, हमारी जो कश्मीरी पंडित के बच्चों की जो परवरिश है, वो सारी की सारी परवरिश एक स्टोरीज़ से, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उससे है।
मैं आज भी याद है मुझे कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो मेरे साथ कैसे हुए। आप सबको याद होगा कि फ़िल्म में भी कैरेक्टर है कृष्णा, तो उससे मैं बहुत रिलेट कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने हालाँकि ड्यूरिंग जो अ, हुआ उस सब से तो मैं नहीं झेली, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डेफ़िनेटली मैंने बहुत अ, इस चीज़ से सफ़र किया है। और वो इस तरह से कि मेरे फ्रेंड्स बहुत कम बन पाए थे स्कूल टाइम पे। मुझे याद है कि जब सारी मतलब मेरी फैमिली जब राजस्थान में शिफ्ट हुई, मेरी मैटरनल साइड की भी मेरी मासियाँ जितनी दोनों मेरी बड़ी मासी, मेरी छोटी मासी जब वो भी शिफ्ट हुए, और भी 2-3 लोग जो भीलवाड़ा में कश्मीरी आए थे, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू एवरी वीक, हाँ, सैटरडे संडे वो मोस्टली सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ही दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, मतलब गेट टुगेदर होता था। उस गेट टुगेदर में बहुत सी कश्मीरी गाने गाए जाते थे, बहुत से मतलब गेम्स हम खेलते थे, बहुत मतलब कश्मीरी खाना खाया जाता था। तो वो चीज़ बहुत छोटे में मैंने देख ली और ये समझ ली कि जो अ, स अपनी मिट्टी से जो जुड़ी चीज़ें हैं ना, वो कितना मिस कर रहे हैं। कल्चरल आइडेंटिटी जो उनके साथ प्रॉब्लम थी, वो कितना मिस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत डिस्टर्बिंग उस टाइम। छोटे थे, हमें इतना पता नहीं था, बट हाँ, अब जैसे बड़े-बड़े आते हैं हमें ज़रूर समझ आता है कि ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली हमारे दिमाग में उस टाइम पे थी कि ये क्यों करें, बट हम बचपने में इतना नहीं कर पाते थे। बट अब समझ आता है कि कि वो जो सारी चीज़ें थी, वो कश्मीर जो वहाँ पे जीते थे, वो अपना कश्मीर, मिनी कश्मीर वहाँ पे बनाना सीख रहे थे। दूसरों को अपना कल्चर बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारा कल्चर ये है। जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। बट अनफॉर्च्युनेटली ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत तरीके से इग्नोर कर दी गई। कुछ बताया नहीं गया, कुछ नहीं है। एंड हमारे बड़े भी जो थे दे ऑल गॉट यूज्ड टू इट व्हाट वाज़ हैपनिंग। जो बच्चे हैं, जनरेशन है, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि सफ़र भी बहुत किया। मैं जेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक कश्मीरी बच्चा बहुत कोशिश करता है एक्सप्रेस करने की, और स्पेशली अपने डिसर्टेशंस के जो थ्रू करता है, जो कॉलेज जाएगा वो बहुत रिलेट कर सकता है, बहुत डिसर्टेशंस के थ्रू एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, बट हो नहीं, मतलब बहुत सुनने को मिलता है उसमें। ऐसे ही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ इस चीज़ से। आई वाज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स हू वाज़ वर्किंग ऑन कश्मीर अ नैरेटिव, और उस पे मैं काम कर रही थी। मैंने बहुत बार सुना है मेरे प्रोफ़ेसर से कि क्यों कर रहे हो बेटा ये? क्या मिलेगा? वायलेंस ही तो है, और लड़ाई-झगड़ा, पॉलिटिक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट। फ्यू प्रोफेसर्स वर देयर हू सेड कि मुझे समझ नहीं आता, तुम कश्मीरी बच्चे जो है वो कश्मीर पे ही क्यों प्रोजेक्ट बनाते हो? सो दिस इज़ व्हाट वी आर ऑलवे वी स्टिल गेट टू हियर दीज़ वर्ड्स कि ऐसा क्यों है? तो ये एक चीज़ से बहुत दुःख वाली चीज़ है, और ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में जनरली होता है कि आपको बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करते हैं आपको कि ये क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, यू गिव इट अ पॉलिटिकल एंगल टू इट। वे एंड आई रेड अ स्टडी वेयर इट वाज़ दैट जितनी भी कश्मीर को लेके स्टडीज़ हुई है ना, मोस्टली सारा पॉलिटिकल स्टैंड से ही पढ़ा जाएगा। कल्चरल से हाँ, बुक्स है, रिलेटेड बुक्स है, बट बहुत रेयर बुक्स है।
कश्मीर का क्या आप मतलब आप कैसे सिचुएशन उसकी जो है वो आप कैसे कैसे आप उसके बारे में बात कर सकते हो, वो बहुत कम है। तो मेरे भी डिसर्टेशन के दौरान ये सारी चीज़ें फेस हुई है कि भाई क्यों ऐसा है, क्या है। बहुत फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से बने हैं। और जब मैं शुरू के टाइम पे मुझे भी जब कोई पूछता था, मेरी आदत है कि मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मेरे से जनरली कोई आम रास्ते पे कोई ऐसे जना चल रहा होगा, ऐसे मैं बात कर रही होंगी, तो दे विल आस्क मी कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो मेरे लिए हमेशा ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत। मैं कभी बोल नहीं पाती। मैं उनको बोलती हूँ मैं कश्मीर से हूँ, तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ें जो है मेरे लिए हमेशा एक चीज़ बताना कि मैं कहाँ से हूँ, मैं बॉर्न कहाँ हुई, फिर मैं अपब्रिंगिंग मेरी कहाँ से हुई, ये क्वेश्चन मेरे लिए हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में मुझे लाके रख देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फेस करी है। ये कृष्णा जो कैरेक्टर है फ़िल्म में, वो भी कहीं न कहीं जूझ रहा है। तो मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर पाई हूँ, इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा इस तरह से आपके सामने है। बाकी जहाँ तक मेरे बड़ों की बात है, डेफ़िनेटली ईच एंड एवरी सीन इन द मूवी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड is exactly what happened with my parents, with my community. ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है या ये कुछ ऐसा कर रहा है या हेट फैला रहा है। नो, ये सिर्फ और सिर्फ जो कहानी है ये एक क्वेश्चन कर रही है कहानी कि ये क्यों है। दूसरा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट बता रही है कि जब एक बिलीफ दूसरे बिलीफ के साथ मिलता है, क्या इम्पोज होता है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये उसके बारे में बता रही है। क्या ह्यूमैनिटी किस हद तक जा रही है सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, ये फिल्म उसके बारे में बता रही है। मैं बिलीव करती हूँ, मैं थैंक यू साथ-साथ मैं ये पहले बात तो मैं थैंक यू करती हूँ मिस्टर विवेक अग्निहोत्री का कि उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई, क्योंकि मेरा मानना है कि एट लीस्ट इट विल टेक, आई डोंट नो, आई कांट से इट इन नंबर्स, बट मुझे लग रहा है शायद और डायरेक्टर्स अभी आना आने चाहिए सामने कि इस फ़िल्म के बारे में बता सकें। क्योंकि इस फ़िल्म में बताई है बहुत, जितना मतलब बताना से बताई है। ऐसी हाँ, कई चीज़ें हैं जो नहीं आ पाई है सामने, ठीक है? बट आनी चाहिए। बट जितनी भी आई है इसमें, वो ऐसा कुछ नहीं है कि बनावटी है या कुछ है, नहीं। इट इज़ एग्ज़ैक्टली द वे इट हैड हैपेंड। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखा है। दूसरा, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक लाइन है कल्हन साहब की, राज तरंगिनी में लिखा है कि सच इज कश्मीर, a country which may be conquered with spiritual merit but not with armed forces. So अब आप समझ लीजिए क्या है कि जितनी भी कश्मीर की सिचुएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जब तक इंसान अंदर से नहीं अपने आप को सुधारेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। it's a fight, it's a struggle of man versus nature, man versus himself. तो आप देख लीजिए ये क्या लड़ाई है। ये फिल्म अगेन, each and every character in the movie has done a tremendous job. बहुत मैं नहीं कंट्रोल कर पाई थी उस टाइम पे कि क्या है। मैं शुरुआत से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ मेरे आंसू ही थे, जो मेरे पास शब्द नहीं थे बयां करने के लिए कि क्या है। सिर्फ और सिर्फ मेरे आंसू ही थे जो शब्दों के थ्रू मेरे फीलिंग्स बता रहे थे। दैट्स इट, ऑल आई कैन से इज दैट।
सो थैंक यू सो मच। हाय, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में। कुछ साल पहले मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक चीज़ शेयर की थी कि 1990 में उनके साथ क्या हुआ, वो किस सरकमस्टांस से गुजरते हुए आए थे, क्या सिचुएशंस में रह के उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, उन्हें माइग्रेट होना पड़ा वहाँ से। तो किस वजह, क्या वजह थी उसके पीछे, उन लोगों ने मुझसे वो शेयर किया था, मेरी फैमिली ने। बट इतना डीप शेयर नहीं किया, मे भी शायद मैं छोटी थी या मैं उस चीज़ को इतनी अच्छे से समझ नहीं पाती कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मैंने उतना ध्यान से उनकी बात उस टाइम नहीं सुनी। बट जब मैंने कुछ दिन पहले ये मूवी देखी द कश्मीर फाइल्स, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझसे एक्चुअल में यही चीज़ बोलना चाह रहे थे जो उनके साथ हुआ। एंड बिलीव मी, जब मैंने ये मूवी देखी, मूवी देखने के बाद मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी कि सच में मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ और कश्मीरी पंडित्स के साथ ऐसा हुआ। तो जब मैं वापस देख कर आई मूवी, मैंने अपने घर वालों से बात की कि सच में आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने काफ़ी, बहुत ही बुरे मन से, बहुत ही सैड होकर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था, जो कि तुम देख कर आए हो, ऐसा ही हुआ था, इवन इससे कई गुना ज़्यादा हुआ था। तो मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई, बिल्कुल भी बोल नहीं पाई, क्योंकि मैं भी शायद इस चीज़ से खुद नहीं गुजरी हूँ, क्योंकि मेरा बॉर्न जम्मू में हुआ है, कश्मीर में नहीं हुआ। तो मे भी शायद मैंने ये चीज़ देखी नहीं, तो मैं इसको समझ नहीं पाती, इसलिए उस टाइम उन्होंने मेरे को ये चीज़ अच्छे से नहीं बताई थी। बट आज जब मैं देख रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, सब समझ सकती हूँ, तो मैंने ये चीज़ समझी कि सच में इनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि डायरेक्टर सर विवेक अग्निहोत्री जी ने ये मूवी बनाई। चलो बहुत टाइम लगा, 32 इयर्स लगे इस चीज़ को सामने आने के लिए, बट इस बात की खुशी है कि किसी ने तो एफ़र्ट्स लगाए कि ये चीज़ सामने आनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके, उनकी पूरी टीम से, पूरी कास्ट से, अनुपम खेर जी से हूँ। बाकी जितने भी लोगों ने इसमें एफ़र्ट्स लगाए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और इनको थैंक यू बोलती हूँ कि इन्होंने ये सच सामने लाया। एंड प्लीज़ प्लीज़ ये मूवी देखिए। जो कश्मीरी हैं, जो नॉन कश्मीरीज़ भी हैं इवन, प्लीज़ वो भी देखें, क्योंकि सबका देखना ज़रूरी तो नहीं, चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, बट किसी ने इतने एफ़र्ट्स लगाए हैं अगर, तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और सबको देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या हुआ था। उस टाइम मेरे पेरेंट्स, जितनी भी कश्मीरी फैमिलीज़ उस टाइम माइग्रेट होकर आए थे, उन्हें उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत थी जो उन्हें नहीं मिल पाया था। तो मे बी शायद आज उन्हें वो चीज़ मिले, किसी के थ्रू, किसी के एफ़र्ट्स के थ्रू अगर ये चीज़ सामने आई है, तो होपफुली हो सकता है कि कुछ चीज़ बदल जाए, कुछ चीज़ें और अच्छी हो जाएं। क्योंकि मैं जब वहाँ से आई तो मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले यही चीज़ हुई थी कि उस टाइम जब हमें ज़रूरत थी तब कुछ नहीं हुआ, तो अब ये सब चीज़ें लाके क्या चीज़ है। बट पॉइंट ये रहता है कि ठीक है, किसी ने उस टाइम नहीं किया या ये चीज़ इतना लेट सामने आई, बट आई तो सही। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सामने आई, बहुत अच्छी बात है, सबको पता चला, इवन मुझे जो नहीं पता था मुझे भी पता चला। ऐसे ही सबको पता चलना चाहिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ सब लोग इस मूवी को वॉच करें एंड देखें उस टाइम 1990 में क्या सिचुएशंस आई थी। तो यस, थैंक यू एंड प्लीज़ गो वॉच द मूवी। थैंक यू। Hi, I'm a Kashmiri Pandit and my birth year is 89 and my birthplace is Srinagar, JNK. So I was 4 months old when things had started tensing up in the valley and other parts of Kashmir, and threats were being circulated everywhere in Kashmir. So one such night, there was a thread that was being circulated that families with two sons, keep one of your son ready and we'll come and pick up your other son, keep your females ready. We take away your females and get them married, and various other kinds of threats. And also, my mother was working in a hospital and she was a government employee. So her name was also there in the hit list. So, because of all these threats and the pressure and the tension that was there, you know,
in the surrounding, in the environment. So my parents decided that it was best for my safety and everyone else's safety in the family, as there were other elderly member as well in the family, that it's better that we move out of the city for a few days and stay somewhere safe. And once things have settled down and things are better and the tension and the situation is better in the city, we'll come back and resume everything, resume our jobs, resume our lives. So keeping that in mind, keeping my safety, their baby's safety in their mind, and everyone else's safety, they decided to move out of the city. So for that, my father managed, to arrange a taxi. So getting a vehicle those days was almost next to impossible. So he had some friends, so he somehow arranged a taxi. So a family of 6 to 7 members managed to fit into that one single taxi and just moved out of the city. And because they had this thought in their mind that, we'll come back once things have settled, so they carried along just essentials like one piece of utensil, one pair of utensil, one pair of clothing, and some basic cash, basic money. That's it. And they moved out of the city. Hoping again, hoping that we'll come back to the city. And that day, they had to leave everything that belonged to them. That was theirs, the place where they were born themselves. They grew up, they got educated, they experienced college life, they experienced youth, they made friends, they got married, and they had their baby. They had to leave everything that and there itself. Everything got shattered, and it was such a huge traumatic phase for them, because now they were staying at a place which was not compatible to their own physical requirements, to their own mental requirements. The area was very less, the climate was not suitable according to their bodies. So things had changed drastically. And because of that, they experienced a lot of trauma, physical trauma, mental trauma. The acculturation stress, was very, very high. In fact, to just quote a fact here. So in my master's, I did a study on acculturation stress of Kashmiri Pandits. So, not surprisingly, even in year 2016, the acculturation stress levels of Kashmiri Pandits was very, very high. However, surprisingly, the resilience levels of Kashmiri Pandits was also very high and was found out to be not correlated to acculturation stress. So this resilience, this trait of theirs, of the generation of my parents and the generations above, is the reason that today my generation has been able to do so much, has been able to achieve so much. It was their resilience, their willpower, which ensured that we get proper nutrition, we get proper education, that we get safety to a great extent. Definitely, things could have been way, way, way better. Things could have been completely different. But whatever was in their control, whatever was possible according to them, they made sure that these basic things are provided to their next generation, that the next generation is given proper amount of education, good education, good food, good nutrition. But when I say this, I also know that a lot of families, a lot of people suffered so much, experienced so much, and lost so much that a lot of them were not even able to get food,
for one meal. I am aware about that and I know that. But still, the resilience was common in all of them. The willpower to survive was common in all of them. And that is what I really, really, feel proud of as a Kashmiri Pandit community, because I've seen my parents exhibiting that resilience. I've seen other Kashmiri Pandit members, people displaying that resilience. Now, talking about my thoughts about the movie. So, first of all, the acting portrayed by each and every cast in the movie is par excellence. Be it Bhasha Sumli ma'am, or Anupam Kher sir, or Mr. Darshan, or every other cast member who's there in the movie has done a phenomenal job. I was just so mesmerized, so shocked by the brilliance of acting skill that they have executed in the movie. And the events that have been shown in the movie, portrayed in the movie, are completely true. And all of them have actually happened. Having said that, it's just not even 1% of the incidents that have been shown and discussed in the movie. Some traumatic and very, very tragic things have happened with families, with people during those years. Very tragic. We can't even imagine. We can't even think of that. If someone would come up to you and tell you that this is what happened, and your first reaction would be, really? This could happen? Nobody did anything? Aisa ho sakta hai? That would be our instant reaction. So second reason why you should go. First, phenomenal acting. Second reason, to witness some facts which probably you never knew. Just imagine, if in your immediate circle you have somebody who's a Kashmiri Pandit, you would have heard about some incidents here and there. But how many of people in their immediate circle have someone who's a Kashmiri Pandit? Very, very few. And that is the reason that this movie needs to be shown to more and more people, so that, people get to understand that what hatred can do, that what huge level of destruction hatred can do. Physical destruction, mental destruction, cultural destruction, infrastructural destruction at so many levels, that what hatred is capable of, and why we should always stop any measure or any way of not letting this hatred come into our lives. And also to understand that what resilience can do, the power that resilience holds to, fight with certain situations, to fight with such difficult times and difficult situations, that how resilience can turn the course of action, how resilience can help you to build a wonderful world together. So I think that is why this particular movie should be shown to more and more people, so that definitely this entire scenario, this entire genocide, exodus of Kashmiri Pandits and those who suffered during that time is discussed, is shown to people, so that people understand that hatred can cause destruction at so many levels, and resilience can actually help you to come out of that destruction. And that is why, according to me, the main reason that this particular picture, this particular movie should be shown to each and every one. And yeah, that's about it. It's a wonderful movie. Even if you don't want to, know about the facts and these aspects, you should definitely, and you somebody who enjoys watching cinema and enjoys good acting, you should definitely go and watch this movie. You'll have a great time looking at Bhasha Sumli, Anupam Kher, Darshan, Mithun Chakravarti, and everyone else who's there in the movie. It's a great movie. Do go and watch it.